Hello everyone. So today we are going to discuss the NCERT solution of chapter 1 chemical reaction and equations. Okay. So the in-text question which was on page number 6, the question number 1 is why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? Magnesium ribbon को जलाने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है? So the answer is magnesium get covered with a layer of magnesium oxide when kept in air for a long time. This layer hindered the burning of magnesium, hence it is to be cleaned before burning. मैग्नीशियम चूँकि एक रिएक्टिव मेटल है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाइट कलर की लेयरिंग बन जाती है जिससे वह जलने में दुविधा होती है। सो इसीलिए उसको जलाने से पहले क्लीन किया जाता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। मैं पहले भी बैलेंसिंग पे अलग से क्वेश्चन बना चुका हूँ, फिर भी एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। सो सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं इस क्वेश्चन की। सो वी हैव द क्वेश्चन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन produce HCl, hydrochloric acid. So now what you have to do, you have to balance this following equation. So now first we have to write the name of the elements which are taking part in chemical reaction, and we have to write the number of atoms present on both sides. So in reactant side there are 2 hydrogen, and in the reactant side there are 2 chlorine, and on the product side we have only 1 hydrogen and 1 chlorine. So to balance this equation we have to multiply 2 on the product side so that the number of hydrogen on product side will all is equal to 2, and the number of chlorine atom in the product side is equal to 2. Now this is the balance equation for the first case. Now the second question is barium chloride plus aluminium sulfate give rise to barium sulfate plus aluminium chloride. So we have to write its equation and we have to balance it. So we have the question barium chloride which is BaCl2, and we have aluminium sulfate which is Al2SO4 whole thrice, and our product is barium sulfate which is BaSO4 and aluminium chloride which is AlCl3. So again with the following step we can balance the equation. As we have one atom of barium on both sides, we have 2 chlorine on the reactant side and 3 chlorine on the product side. So what we will do, we will multiply 3 on the reactant side and 2 on the product side. Now the number of chlorine atom is equal to 6 on the both side, but the number of barium atom on the reactant side is equal to 3, so we will multiply 3 on the product side. So now the number of barium atom is equal to 3, the number of sulfur is equal to 3 in the product side, and number of sulfur in the reactant side is equal to 3. The number of oxygen atom in the reactant side is 4 into 3 12, and the number of oxygen atom in the product side is equal to 12. So this is our balanced chemical equation for the second question. Now the third question is sodium plus water give rise to sodium hydroxide and hydrogen gas. So now you can simply balance this equation by the following step. आप इस equation को औरों की तरह आप बैलेंस आसानी से कर सकोगे. So now the third question is again a balanced chemical equation with state and symbol for the following reaction.
Solution. First question is solution of barium chloride and sodium sulfate in water reacts to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. बैलेंसिंग की क्वेश्चन की वीडियो मैंने अलग से डाली थी और ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी चुका हूँ मैं, तो हम बैलेंसिंग के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले अलग से एक क्लास में हम कर चुके हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द पेज नंबर 10 is a solution of a substance X is used for white washing. एक कोई substance है X जिसका solution white washing के लिए use किया जाता है. Now what you have to do, you have to name the substance and write its chemical formula, and second you have to write the reaction of that substance with water. So the substance which is used in white washing, वो substance जो white washing में use होता है वो आपका क्विक लाइम होता है. क्विक लाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं और उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaO. और इन द सेकेंड लाइन वी हैव द इक्वेशन फॉर द क्विक लाइम विद वाटर इज गिवन. सो द इक्वेशन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज CaO plus H2O give rise to CaOH whole twice. When quick lime reacts with water it produces slaked lime. So slaked lime is calcium hydroxide. क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वह स्लेक लाइम की फॉर्मेशन करता है और स्लेक लाइम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH whole twice means calcium hydroxide. Now the second question is why is the amount of gas collected in one of the test tube in textbook activity 1.7 that is electrolysis of water double the amount collected in the other, name the gases. Okay, सो एक्टिविटी 1.7 जो है वो है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, जो दो गैसेस निकलती हैं उसमें से एक गैस जो होती है जनरली जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती हैं दो गैसेस, उसमें जो हाइड्रोजन का अमाउंट होता है वो ऑक्सीजन से डबल होता है. सो रीज़न पूछ रहा है आपसे और आपसे गैसेस के नाम पूछ रहा है. तो जो आंसर इज, तो जो एक्टिविटी है 1.7 वो क्या है, वो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस है. सो वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज टू गिव हाइड्रोजन गैस एट वन इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीजन गैस एट द अदर इलेक्ट्रोड. कैथोड पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है और एनोड पे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है एंड एनोड पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है. और जो हाइड्रोजन का अमाउंट होता है, हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होता है ऑक्सीजन के अमाउंट से. नाउ कम टू द रीज़न वाई ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन का अमाउंट जो होता है वो ऑक्सीजन से डबल होता है, तो इस पे डिस्कस करते हैं. तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का विच इज़ H2O, तो वाटर स्प्लिट डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. नाउ द क्वेश्चन इज कि हाइड्रोजन का अमाउंट क्यों डबल होता है ऑक्सीजन से. तो अगर हम वाटर की बात करें तो एक वाटर मॉलिक्यूल में दो एटम हाइड्रोजन के होते हैं और एक सिंगल एटम होता है ऑक्सीजन का. यही कारण है कि जब वाटर स्प्लिट होता है तो हाइड्रोजन का जो अमाउंट होता है वो डबल आता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is on page number 13. Question number 1, why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it. So क्वेश्चन ये पूछता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज होता है जब हम उसके अंदर आयरन नेल को डिप करते हैं. सो व्हेन अ आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस. द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट. सो जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें आयरन जो होता है क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और फॉर्मेशन करता है आयरन सल्फेट की. तो ये जो आयरन सल्फेट होता है इसके कारण ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है और ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का था वो चेंज हो जाता है लाइट ग्रीन कलर में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट. Okay, so now come to the second question. Give an example of a double displacement reaction other than the one given in the NCERT. NCERT के अलावा कोई एक ऐसा एग्जाम्पल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट का. So answer will be,
sodium hydroxide and hydrochloric acid react to give sodium chloride and water. So this is the reaction given below for the reaction of double displacement, in which sodium hydroxide is reacting with HCl and producing NaCl and water. Now the question number 3 is identify the substance that are oxidized and the substance which are reduced in the following reaction. इन रिएक्शन में हमको ये फाइंड करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज 4Na प्लस O2 गिव राइज टू 2Na2O. अगर इस केस में हम देखें तो सोडियम जो है हमारा वो ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि उसने ऑक्सीजन को गेन किया है और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हुआ है. सेकेंड केस इज CuO प्लस H2 गिव राइज टू Cu प्लस H2O. नाउ इस केस में आपका जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ है एंड जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हुआ है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन इज गिवन which is Fe2O3 plus 2Al give rise to Al2O3 plus 2Fe. और आपसे ये पूछ रहा है कि यह किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है. क्या ये कॉम्बिनेशन है, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. सो द आंसर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में आयरन एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग. नाउ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या होता है जब HCl आयरन फिलिंग में ऐड किया जाता है. सो आपको रिएक्शन देखनी पड़ेगी कि जब आयरन और HCl रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होती है. सो अगर हम रिएक्शन की बात करें, व्हेन आयरन विच इज Fe reacts with hydrochloric acid which is HCl, displacement reaction takes place and the production of iron chloride which is FeCl3 and hydrogen gas is produced. So now in this case iron chloride is produced and hydrogen gas is released. So the option is first case is hydrogen gas and iron chloride are produced. So this is our correct answer because in this case hydrogen gas and iron chloride is produced. Okay, now the fourth question is what is a balanced chemical equation? Why should a chemical equation be balanced? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है. सो अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ इक्वेशन in which the number of atom in the reactant side is equal to the number of atom in the product side. And why should we chemical equation be balanced? So the chemical equation should be balanced to satisfy the law of conservation of mass. एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वह इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. और हम रिएक्शन को बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो सके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड वी हैव टू बैलेंस दिस. अगेन हम बैलेंसिंग के क्वेश्चन अलग क्लास में कर चुके हैं, सो हम ये स्किप करेंगे. सो दिस आर द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. देन अगेन क्वेश्चन नंबर 6 is for the balancing. We have done it in the previous classes, so we will skip this in this session. Again question number 7 is write the balance equation for the following reaction. So again we are skipping this part. Question number 8 again for balancing. Okay, so in question number 8 you also have to identify the type of reaction. So the first reaction is potassium bromide plus bromine iodide gives rise to potassium iodide and bromine bromide.
सो दिस इज द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला केस जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, क्योंकि इसमें आयंस जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें बी पार्ट की, सो जिंक कार्बोनेट इज डिकम्पोजिंग इनटू जिंक ऑक्साइड एंड CO2 गैसेस प्रोड्यूस। सो इस केस में आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट है और आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। सो दिस टाइप इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सी पार्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स राइज टू HCl। Again, in this case, we have two reactant and only a single product. So this will be the type of combination reaction. Fourth, Mg plus HCl give rise to MgCl2 plus hydrogen. In this case, magnesium is displacing the hydrogen. So the reaction will be displacement reaction. Okay. Now the question number 9 is, what does one mean by exothermic and endothermic reactions? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंड ऑल्सो यू हैव टू गिव एग्जाम्पल। सो फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटिंग बाय राइटिंग प्लस हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते समय हम प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मीन्स कि हीट जो है वो इवॉल्व हुई है ड्यूरिंग द रिलेशन। सो वी आर टेकिंग सम एग्जांपल, व्हेन कार्बन इज बर्न्ड CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज अ केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ come to the endothermic reaction. So those reaction in which heat is absorbed are known as endothermic reactions. वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, सो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय राइटिंग नेगेटिव हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते समय हम प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मीन कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 10 विच इज व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि रेस्पिरेशन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर क्यों करते हैं। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। सो respiration is an exothermic process because during respiration glucose combine with oxygen in the cell of our body to form carbon dioxide and water along with the production of energy. Respiration वह प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और CO2 वाटर के साथ प्रोडक्शन करता है एनर्जी का। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नाउ द केमिकल इक्वेशन इज गिवन फॉर respiration which is glucose which is C6H12O6 plus 6O2 give rise to 6CO2 plus 6H2O plus energy. So this is the reaction given for the respiration. Now come on the next question which is what are decomposition reaction, why are decomposition reaction called opposite of combination reaction? Write equation for this question. Now the question is asking why decomposition are called opposite of combination reaction. So question डिमांड कर रहा है कि क्यों decomposition reaction को opposite of combination reaction क्यों कहा जाता है। So answer is, in decomposition reaction a single compound break down to produce two or more simpler substances. Decomposition reaction में एक reactant टूट जाता है और दो या दो से ज़्यादा simpler substances प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज करता है। जबकि while in a combination reaction two or more substances simply combine to form a new substance. जबकि combination reaction में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। So that's why combination reaction is opposite of decomposition reaction. इसीलिए combination reaction opposite होता है decomposition reaction के। Now the question number 12. Write one equation each for the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity.
आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन की 3 केसेस देने हैं, 3 इक्वेशंस देनी है जिसमें जो एनर्जी सप्लाई हो वो हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में. सो in decomposition reaction, when the energy is supplied in the form of heat, the reaction is known as thermal decomposition. When it is carried out by the light, the reaction is photo decomposition. And when it is carried out by the electricity, the reaction is electrolysis. Okay, so आपको तीनों का एक एक रिएक्शन देनी है. So first case is of thermal decomposition, which is when calcium carbonate is heated, it decomposes into calcium oxide and CO2 gas is released. Second case, when silver bromide comes in the contact of sunlight, it decomposes into silver and bromine. And third, the electrolysis of water. So when electricity is passed through the water, it split into hydrogen and oxygen. तो ये 3 रिएक्शंस आपको हर एक केस की गिवन है. Now the question number 3 is, what is the difference between displacement reaction and double displacement reaction? Also you have to write equation for this reaction. Now इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या फ़र्क होता है और आपको एक एक इक्वेशन दोनों की राइट करनी है. So the answer is, in displacement reaction, a more reactive metal displaces a less reactive metal from its solution. For example, Fe plus CuSO4 gives rise to copper plus FeSO4. So displacement reaction में एक highly reactive metal less reactive metal को उसके solution से displace कर देता है. रिएक्शन आपको दे रखी है, आयरन नेल जब हम डिप करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बनता है और कॉपर निकलता है. नाउ इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू रिएक्टेंट इन सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आयंस. फॉर एग्जांपल, व्हेन AgNO3 is react with NaCl, AgCl plus NaNO3 is produced. सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन single displacement reaction and double displacement reaction. Now the question number 14 is, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब सिल्वर की रिफाइनिंग की जाती है तो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर की रिकवरी के लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और कॉपर मेटल सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है. इस रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी है आपको, केमिकल इक्वेशन, विच इज गिवन 2AgNO3 प्लस कॉपर विच इज Cu गिव राइज टू CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag. सो दिस इज द इक्वेशन गिवन फॉर दिस केस. नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज, explain the following term in terms of gain and loss of oxygen with 2 example each. Oxidation and reduction. Now इस क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में एक्सप्लेन करना है. सो द फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन. द एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ओके, सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है जबकि रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है. सो इन रिडक्शन देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड द टू रिएक्शन आर गिवन बिलो फॉर द ऑक्सीडेशन एज वेल एज फॉर द रिडक्शन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17. अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X on heating in air become black in color. Name the element X and the black colored compound form. नाउ इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है, वो जब हीट करते हैं उसको एयर में तो ब्लैक कलर का हो जाता है. नाउ आपको उस एलिमेंट का नाम बताना है और वो जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना है उसका भी नाम बताना है. सो जैसा कि आपको पता है कि ब्राउन कलर का एलिमेंट इज कॉपर. सो द एलिमेंट X इज कॉपर एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड. कॉपर जो होता है वो फ्लेम नहीं पकड़ता, वो कॉपर ऑक्साइड की एक ब्लैक लेयर बना लेता है.
तो जो ब्लैक कलर की लेयर है वो आपकी कॉपर ऑक्साइड की बनेगी। एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व इज 2Cu plus oxygen O2 give rise to 2CuO. So this is the reaction for this following case. Now the question number 80 is why do we apply paint on iron article? सो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप आयरन आर्टिकल पे जनरली पेंट करते हैं, तो वो पेंट आप क्यों करते हैं? सो द आंसर इज पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर वाटर एंड सेव आयरन आर्टिकल फ्रॉम डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। पेंट करने से क्या होता है कि आयरन जो है आपका आयरन आर्टिकल वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एयर के नहीं आता और वो जो है वो रस्टिंग उसमें नहीं होती। Now the question number 19 is oil and fat containing food item are flushed with nitrogen. Why? जो oil of fat containing atoms होते हैं उसमें जनरली नाइट्रोजन फ्लश की जाती है, जैसे कि जनरली चिप्स के पैकेट में होता है। तो वो ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों नाइट्रोजन उसमें फिल की जाती है? सो द आंसर इज टू कीप फूड आइटम फ्रेश एंड सेफ फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। फूड आइटम्स को फ्रेश और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, रेंसिड होने से बचाने के लिए फूड आइटम में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जांपल ईच। फर्स्ट इज करोजन एंड सेकंड इज रेंसिडिटी। सो नाउ द फर्स्ट इज करोजन. It is the process in which metal are eaten up by gradually by the action of air, moisture or chemicals such as acid on their surface. सो करोजन वह प्रोसेस है जिसमें कोई मेटल डिग्रेड होता है क्योंकि मॉइस्चर, एसिड और एयर उस पर अटैक करते हैं और उसको डिग्रेड कर देते हैं। नाउ द रिएक्शन इज गिवन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन विच इज 4Fe plus 3O2 plus 2x H2O give rise to 2Fe2O3 dot x H2O. सो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज योर रस्ट। इसको क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं, जो कि जनरली आयरन में देखने को मिलती है, जिसको हम जंक लगना कहते हैं। नाउ द लास्ट इज रेंसिडिटी. सो व्हाट इज रेंसिडिटी? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड अप बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी. रेंसिडिटी वह प्रोसेस है जिसमें जो फूड मटेरियल में फैट और ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके कारण फूड का स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाते हैं। सो रेंसिडिटी स्पॉइल द फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन फैट एंड ऑयल विच हैव केप्ट फॉर द कंसिडरेबल टाइम और मेक देम अनफिट फॉर ईटिंग। रेंसिडिटी से जो आपके फूड मटेरियल होते हैं जो कि जनरली फैट और ऑयल से बने रहते हैं वो आपके अनफिट हो जाते हैं ईटिंग के लिए। रेंसिडिटी के बाद अब आप अपने फूड मटेरियल्स को ईट नहीं कर सकते। सो हाउ कैन रेंसिडिटी बी प्रिवेंटेड? आप रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट करेंगे? सो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड containing fat and oil. It can also be prevented by flushing fat and oil containing foods with nitrogen before sealing. Okay, so रेंसिडिटी से बचने के लिए आप फूड मटेरियल में एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिकल्स में काफ़ी ज़्यादा ऑयल यूज़ किया जाता है सो दैट कि पिकल जो है वो आपका ख़राब ना हो और लंबे टाइम तक चल सके। सेकेंड थिंग, इट कैन बी ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन बिफोर सीलिंग। सो नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है जैसे कि आप चिप्स और कुरकुरे के पैकेट में देखते हैं, ताकि आपके जो फूड मटेरियल है वो ईजिली रेंसिड ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो और लंबे टाइम तक चल सके। सो दीज वर द NCERT सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 1। ये सारे क्वेश्चन थे चैप्टर 1 में NCERT बुक में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।